Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is 17 June 2021, and I am teaching you chapter number 3. Name of the chapter is Fun Time. Name of the chapter is Fun Time. So, student, what are the outdoor games that I have already explained you in the previous video? Let's do little recapitulation. For example, student, the games which we play in a open ground or outside our house, that is our outdoor games. And some of the outdoor games and which I have already explained you in the previous video are like cricket, football, volleyball, basketball, etc. So these are some of the outdoor games which we play, and we play this game in the open fields. And there are some other outdoors games also in which no equipment is required. जैसे अब क्रिकेट है, उसमें बैट चाहिए, बॉल चाहिए, स्टम्प चाहिए, ग्लव्स चाहिए. सो देर आर सम आउटडोर गेम्स इन विच नो इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सच एज हाइड एंड सीक, hopscotch, seven stones. So these are also some of the outdoor games. Now after that, today video I will explain you about indoor games. Due to harsh weather, we are unable to go outside our house. So at that time, the games which we play inside the house, that games are known as indoor games. For example, in summer the weather is very hot, so in the afternoon time we can't go outside our house. So at that time you can play ludo, chess, carom, snake and ladders, scramble. So these are the few games which you can play inside your house. Even at the time in current now, which season, that is the rainy season. In rainy season also there is lot of rain in every part of the country. So at the time of rain, what's happened, the ground submerge. What does it mean? It means that rainy season में क्या होता है, रेन ज़्यादा होने से ग्राउंड्स क्या होते हैं, डूब जाते हैं पानी में. ठीक है, तो ग्राउंड सबमर्ज्ड मतलब डूब जाना, सबमर्ज इन ए वाटर, एंड we can't play outdoor games at that time. So in this condition also, and even in a winter season, when the wind which blow at the time of winter, that is very cold. So in that weather also we can play indoor game inside our house. Okay, now ludo, and what is the difference between indoor and outdoor game? In outdoor games, number of players that are required are more, but when you are playing indoor games, then the number of players are less. For example, you are playing ludo, so you play ludo with two or maximum players which can play ludo at the time, that is 4. In the same manner, carom, if you are playing the game carom, first is ludo, so maximum
players play this game is 4. ठीक है, मैक्सिमम प्लेयर प्ले दिस गेम, मैक्सिमम प्लेयर प्ले दिस गेम are 4 players. You can play this game with the 2 player also, or you can play this maximum number of players which can play this game are 4. Is it clear? In the same manner, when you are playing carom, so in the same manner when you are playing carom, so minimum players which can play carom, that is 2 players, that is 2 players. Okay, but maximum, this is the minimum, and 4 players maximum. ठीक है, so in carom 2 players minimum and 4 player maximum. So, and there are many games, and again the important thing that which I have already explained you in the previous video also, whenever you are playing any game, whether it is a indoor game or outdoor game, please follow the rules of the game. Whether the game is outdoor or indoor, all the games have some rules, so please follow the rules of the game and play a fair game. ठीक है, हमें गेम्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए और फेयर गेम खेलनी चाहिए. इज इट क्लियर? Next step, physical activity is important for the growth of the body. It is very important to maintain a balance between outdoor and indoor games. See, by playing these types of games, especially when you play outdoor games, so these games you do lot of exercise, lot of body exercise, so this is very good for your health. Okay, and due to this there is very this is very good, and playing this type of a game, that is very good for your health also. And student, because lot of running, lot of walking, or at the time when you are playing outdoor game, so each and every part of the body, ठीक है, और एक तो हम इंजॉय बहुत करते हैं गेम्स प्ले में, और मैक्सिमम ऑर्गन्स हमारे बॉडी के एक्टिव होते हैं. ठीक है, हमारे बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन्स एक्टिव होते हैं व्हेन वी आर प्लेइंग आउटडोर गेम्स. इज इट क्लियर? व्हेन वी आर प्लेइंग आउटडोर गेम्स, सो मैक्सिमम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी आर वेरी एक्टिव एट दिस टाइम. सो बैलेंस रखने के लिए इसलिए बोला है बेटा, क्योंकि देखो आज के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, is it clear? If we are talking about the present time, see, when your parents done study, or I have done my study, or your grandparents, so at that time, maximum time, how, what is the fun for the students at that time? So we spend maximum time, we engage ourselves in playing डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए गेम. जो गेम्स मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं, हमने मैक्सिमम टाइम अपने को इन गेम्स में इंगेज रखा. ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें बेटा, 21st सेंचुरी है. नाउ देयर इज लॉट ऑफ एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत एडवांसमेंट हो गई है. जब आपके मम्मी पापा छोटे रहे होंगे, जैसे आप 3rd 4th क्लास में पढ़ रहे हो, कभी वो भी पढ़े होंगे,
या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, सो एट दैट टाइम देयर इज नो वीडियो गेम और मोबाइल फोन्स। आज तो आप सबसे लेटेस्ट टेक्निक है आपके पास, ठीक है। स्कूल इज क्लोज ड्यू टू COVID-19, बट इवन you are in touch with the study due to your mobiles, laptops, computers. So in present time students are giving maximum time in watching the TV cartoon channels. Is it clear? मैक्सिमम टाइम, इससे उनकी आई साइट भी वीक हो रही है। आज देखो बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी स्पेक्टिकल चश्मे लगने लगते हैं, ऐसा ओल्ड टाइम में बहुत कम होता था या एकदम लेस होता था। इज इट क्लियर? और मैक्सिमम बच्चे दे आर बिजी इन प्लेइंग मोबाइल गेम्स, दे आर बिजी इन प्लेइंग मोबाइल गेम्स। सो what I want to explain you that student, ये जो outdoor games हैं that is very good for you. Due to these types of games you are fit and healthy, so please give time to these types of games, ठीक है। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप मोबाइल नहीं देखो, टीवी वॉच नहीं करो, बट डोंट क्रॉस द लिमिट्स, डोंट क्रॉस द लिमिट। इज इट क्लियर? अगर आप लिमिट क्रॉस करके देख रहे हो देन व्हाट्स हैपन, आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, आप फिट और हेल्दी भी नहीं रहोगे, क्योंकि आप कहीं बाहर जा ही नहीं रहो। इज इट क्लियर? सो और ज़्यादा स्क्रीन पे मोबाइल्स खेलने पे या वीडियो गेम्स खेलने या कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स खेलना या मूवीज वॉच करना, टीवी देखना, इससे आपकी आई साइट भी वीक हो रही है। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो प्लीज गिव टाइम टू these टाइप्स ऑफ गेम्स। इज इट क्लियर? दैट इज these गेम्स मेक यू फिट एंड हेल्दी, और आपका ग्रोथ भी होता है इस गेम से, और आपके बॉडी की डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। क्योंकि हम अलग से टाइम जल्दी छोटे बच्चे नहीं निकालते हैं एक्सरसाइज के लिए। वैसे तो बोला जाता है डेली, आजकल आप मॉर्निंग में योगा कर रहे हो, जितने दिन हम लोग करा रहे हैं उसके बाद कुछ बच्चे तो रेगुलर करेंगे और कुछ बच्चे दे फ्रॉम द सेम डे दे लेफ्ट ऑल द एक्सरसाइजेस। सो बट इफ दे इंगेज देमसेल्फ, अपने आप को वो इस तरह की एक्टिविटीज में, इस तरह के गेम्स में भी इंगेज रखते हैं, तो भी उनके अपने आप ही बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। इसीलिए बोला गया है ये गेम्स क्या है, दे दैट इज द रीजन फिजिकल एक्टिविटी। और आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसे हो रही है? गेम्स खेलने से हो रही है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्यों? इज इट क्लियर? फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो बेटा डेली, your parents always say you do study, but one day 24 hour, so in 24 hour please give 1 hour time in playing outdoor games also, only 1 hour। हाँ, दिस टाइम COVID-19 है, अभी पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं बाहर जाना है ग्राउंड में खेलने, तो अभी आप नहीं जाओगे, अभी तो आप नहीं जाओगे बाहर ग्राउंड्स में खेलने। हाँ, जब 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 कोविड नहीं होगा, ऑल द स्कूल्स भी खुल जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, तो बेटा प्लीज़ आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में आप अपने को इन्वॉल्व ज़रूर करो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल गेम्स। नेक्स्ट इज द गेम्स में हमने डिस्कस कर लिया, वी डिस्कस games, that is what is the outdoor games and what are the indoor games. Okay, now we will discuss about the traditional games. Traditional games, there are some games, there are some games that there are some games that are specific
और रीजन और ए कंट्री। दे आर प्लेड generation after generation। ठीक है, अब देखो नाउ व्हाट आर ट्रेडिशनल गेम्स। ठीक है, देयर आर सम गेम्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ रीजन और ए कंट्री, दे आर प्लेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो देयर आर फ्यू गेम्स जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वी आर प्लेइंग। जैसे व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि आपके मम्मी पापा ने भी जब वो छोटे रहे होंगे वो गेम्स खेली होंगी। ठीक है, आप भी खेल रहे होंगे इस समय, आपके मम्मी पापा जब छोटे होंगे उन्होंने भी खेला होगा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कभी आपकी तरह किड्स रहे होंगे तो वो भी ये गेम्स खेले होंगे। तो दैट इज द रीजन इन्हें ट्रेडिशनल गेम्स बोला गया, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो चीजें चलती चली आ रही हैं। ठीक है, जैसे जो चीज फर्स्ट जनरेशन ने की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के समय में जो गेम्स हुआ करती थी, फिर उस आपके पेरेंट्स, फिर आपके पेरेंट्स के बाद अब आप लोग खेल रहे हो। इस तरह जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो चीज़ें जो गेम्स होती चली आ रही हैं उन गेम्स को हमने किस कैटेगरी में रखा, ट्रेडिशनल गेम्स में। ठीक है, और देयर आर सम गेम्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ रीजन। स्पेसिफिक टू अ रीजन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर एरिया। जैसे हमारी कंट्री इंडिया ही है, सच अ बिग कंट्री, तो हो सकता है कोई गेम ऐसी हो जो उस पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा फेमस हो वहाँ की। होता है ना सब जगह की, जैसे आप अलग अलग शहर में जाते हो, हर शहर की अलग अलग फेमस चीज होती है। जैसे वाराणसी इज फेमस फॉर घाट्स, बनारसी साड़ीज, लंगड़ा आम। सो इन दिस सेम मैनर डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट एरिया में अब अलग अलग गेम्स होती हैं जो पर्टिकुलरली वहाँ सबसे ज़्यादा खेली जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला है देयर आर सम गेम्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ रीजन। कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन होगा जहाँ ये गेम सबसे ज़्यादा होती होगी, और ए कंट्री। ठीक है, तो रीजन कहाँ का है, किसी ना किसी कंट्री का ही होगा, इसलिए तो दैट इज द रीजन जो गेम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, तो उन गेम्स को हमने ट्रेडिशनल गेम्स बोला। नाउ आई विल राइट few traditional games name on the board so that you can understand। Kite flying, see this is why this is a traditional game। आप में से बहुत बच्चों को काइट फ्लाइंग करना आता होगा, मुझे भी आता है। ठीक है, सो आपके पेरेंट्स में भी बहुत से पेरेंट्स को काइट फ्लाइंग आती होगी। ठीक है, पतंग उड़ाना, काइट फ्लाइंग मीन्स पतंग उड़ाना। ठीक है, एंड हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी ये करते हो, तो दैट इज द रीजन। अब दी आई राइट ऑन द बोर्ड नेम ऑफ द फ्यू गेम्स विच वी प्ले इन आवर कंट्री और इन एनी रीजन। ठीक है, अपनी कंट्री में और इन एनी रीजन ऑफ आवर कंट्री, मतलब कंट्री के किसी भी एरिया का। ओके, जैसे काइट फ्लाइंग है, कैमिल रेस। कैमिल रेस ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है, राजस्थान में। अब देखो ये पार्टिकुलर रीजन से, राजस्थान कहाँ बेटा, इंडिया में ही है। राजस्थान इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री दैट इज इंडिया। सो कैमिल रेस ये जनरेशन, कई जनरेशन से ये रेस चली आ रही है। वहाँ के लोग कैमिल रेस, पुष्कर मेला होता है एक, ठीक है, पुष्कर मेला होता है राजस्थान में, बड़ा फेमस मेला है। और इस मेले में ये जो फेयर लगता है, इसकी बहुत ही फेमस रेस है ये कैमिल रेस, एवरी ईयर। इज इट क्लियर, पुष्कर मेला इन राजस्थान। सो अब देखो, जैसे अब यहाँ पे बोला था ना, कुछ गेम्स क्या है, कुछ रीजन में बहुत फेमस हैं। अब देखो जैसे कैमिल रेस है, कैमिल रेस इज फेमस इन राजस्थान, एंड राजस्थान
इज इन विच कंट्री? दैट इज आवर कंट्री इंडिया, ठीक है। सो दिस इज आल्सो ए ट्रेडिशनल गेम। काइट फ्लाइंग, कैमिल रेस, लट्टू, ठीक है। कल ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास में कितने बच्चों को लट्टू आता है चलाने। थ्रेड से बांधने में आप उसको जमीन पे फेंकते हैं तो इट स्टार्ट रोटेटिंग ऑन द निडल, निडल पे वो रोटेट करने लगता है बहुत स्पीड से। तो कल ऑनलाइन क्लास में वीडियो अगर आपने वॉच कर ली होगी तो ऑनलाइन क्लास में मुझे बताओगे हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस गेम, ठीक है। नेक्स्ट इज गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा एंड सो ऑन, मतलब और भी कई गेम्स हैं। फ्यू नेम्स आर गिवन इन द बुक बट और भी बहुत सी गेम्स हैं। जैसे कबड्डी की गेम है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आ रही है। ऐसा नहीं कबड्डी अभी खेल रहे हैं लोग, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कई जनरेशन कबड्डी खेलते जा रही हैं। कुश्ती, जिसको रेसलिंग आप लोग कहते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है? ट्रेडिशनल गेम्स हैं। गिल्ली डंडा सबने ही खेला होगा। एक स्टिक होती है जिससे हम लोग गिल्ली को क्या करते हैं? हिट करते हैं, ठीक है। दैट इज गिल्ली डंडा, ओके। सो व्हाट आर ट्रेडिशनल गेम्स? द गेम्स विच आर प्लेइंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन से पास होती चली आ रही हैं। हो सकता है ये आपके दादा दादी के मम्मी पापा ने खेली हो, फिर दादा दादी ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, फिर आपके पेरेंट्स ने, फिर आप खेलोगे, फिर आपकी जो जनरेशन होगी, यंग जनरेशन हो सकता है वो भी खेलें। तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो गेम्स पास होती चली आ रही हैं दैट इज नोन एज ट्रेडिशनल गेम्स हैं ये सब, ठीक है। जैसे काइट फ्लाइंग, पहले भी, आज से कई साल पहले भी लोग काइट फ्लाइंग करते थे, आज भी लोगों की ये फेवरेट गेम है, बहुत लोग काइट फ्लाइंग करते हैं, ठीक है। कैमिल रेस, इट इज फेमस इन राजस्थान, पुष्कर मेला लगता है, फेयर, पुष्कर फेयर, एवरी ईयर देयर इज अ कैमिल रेस होती है। फिर लट्टू, दिस इज आल्सो ए गेम। गिल्ली डंडा, दिस इज आल्सो played by the kids, okay, and so on, means there are many other games also but a few names are given in the book, like I have already discussed you, kabaddi है, ठीक है, wrestling है। so these are also traditional games। so I hope what are traditional games is clear to all of you, ठीक है। ट्रेडिशनल गेम क्या है सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। There are some games that are specific to a region or a country. They are played generation after generation, ठीक है। तो that is generation after generations जो गेम्स चली आ रही हैं वो क्या है? That is our traditional games. Is it clear? Now after that it is, and it is also shown in the picture also. See, indoor games students are playing Ludo. In this, how many players? 2 players. Carom 2 players, but maximum 4 players can play Ludo and Carom, ठीक है। Now see what this boy is doing, he is watching the, he is playing video game, ठीक है। और स्क्रैबल अरेंज करते हैं, इसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको अरेंज करके इस गेम को भी प्ले करते हैं। इज इट क्लियर? So these are the indoors games, and see famous traditional games like kite flying, lattu, and this is gilli danda, okay, this is gilli danda। so these are the famous games which are known as traditional: kite flying, camel race, lattu, and gilli danda, okay। so these are the traditional games। now we discuss about the hobbies। देखो हम लोग सारा दिन वर्क करके, ठीक है, हम लोग बड़े लोग हैं, कहीं जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, कुछ करते हैं। आप लोग क्या करते हो? स्टडी करते हो। तो ऑल द टाइम स्टडी कर करके आप भी टायर्ड हो जाते हो, थक जाते हो या बोर हो जाते हो, तो आपको भी चेंज चाहिए। तो इस चैप्टर में वही डिस्कस किया जा रहा है कि हाउ कैन वी रिलैक्स अस एंड रिफ्रेश अस, ठीक है, हम कैसे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं और अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं,
ठीक है, तो इसके लिए कुछ चेंज, जैसे आप एक जगह बैठे, जैसे आपके समर हॉलीडेज होते हैं, ठीक है, तो आप अपने रिलेटिव्स के घर घूमने जाते हो, कोई टूरिस्ट प्लेस पे विजिट करने जाते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत इंजॉय करते हो। तो ये तो आप ईयर में एक ही बार करते हो, जब आपकी समर वेकेशंस आती हैं, ठीक है, क्योंकि समर वेकेशन इज अ लॉन्ग हॉलीडेज फॉर 40-50 days स्कूल इज क्लोज्ड, ठीक है। बट डेली लाइफ में देखो, आज जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, आज आप लोग 3, 4, 5 में पढ़ रहे हो, 7, 8, 9, 10 ईयर्स आपकी एज होगी, बट यू हैव ऑल्सो अ वेरी बिजी शेड्यूल। स्कूल्स आते थे तो यू हैव फर्स्ट वो पीरियड, देन इंटरवल इज द टाइम when you relax yourself, you take some energy by eating the food, and at that time you play within 15 or 20 minutes interval, you play lot of games also। तो आप वहाँ रिलैक्स कर रहे हो, अपने को क्या करते थे, रिफ्रेश करते थे, फिर नेक्स्ट 4 पीरियड एंड यू गो बैक होम, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम देखें तो आप लोग का शेड्यूल भी बहुत बिजी है। बहुत से बच्चे, मैं तो खुद देखता हूँ, when I go back home, then I see many student with their copies and bag, they are going for the tuition classes। 1:40 पे स्कूल की छुट्टी हुई, उसके 1 घंटे बाद रेस्ट की, फूड खाया, रेस्ट की, फिर चल दिए ट्यूशन पढ़ने। मे बी वो फिर आते होंगे ट्यूशन से 2 hour 3 hour, आफ्टर अटेंडिंग द ट्यूशन दे कम बैक अगेन, दे हैव टू डू होमवर्क गिवन बाय द टीचर and homework given by the tuition teacher, they watch some TV also। So in present time the schedule of the student is also very busy, but in that busy schedule also, student, you please give some time to these types of activities, because these activities keep you fit and healthy। is it clear? So इन दिस चैप्टर हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने को रिलैक्स करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए किस किस चीज़ों में अपने को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, जिससे कि हम फिट और हेल्दी रह सकें, ठीक है, जिससे हम लोग फिट हेल्दी रहें और हमारा माइंड भी क्या रहे, एक्टिव रहे। इज इट क्लियर? सो दैट ऑल द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, कि व्हाट वी हैव टू डू। बहुत बोर हो गए हम, बहुत टायर्ड हो गए, थक गए कोई चीज़ को करते करते, या तो स्टडी करते, या तो आपके पेरेंट्स हैं वर्क करते करते, जैसे आपकी मम्मी लोग भी हैं, डेली वो लोग भी इतना वर्क करते हैं आपके लिए, डेली वो लोग भी इतना वर्क करते हैं, तो उनको भी तो कुछ फ्री टाइम चाहिए ना, जिसमें वो भी इंजॉय कर सकें, अपने को रिलैक्स कर सकें। देखो ठीक है, तो एक रेस्ट दूसरी चीज़ है कि डेली हमें 6 to 8 आवर्स स्लीप करना चाहिए, क्योंकि आवर बॉडी इज आल्सो अ मशीन, वी नीड रेस्ट। अगर हम रेस्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर रात को रेस्ट नहीं करते हैं, स्लीप नहीं करते हैं, तो भी हम एकदम बीमार पड़ने लगते हैं। आप कभी देखो, लेट नाइट तक मान लो आप जगे हो, कोई पार्टी में गए, रात के 1-2 बजे लौट के आए, और सुबह मॉर्निंग में आपको 4-5 AM यू वेकअप 4 और 5 AM फॉर द स्कूल, तो होल डे आपको लगता है कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। ऐसा फील होता है ना कभी कभी कि बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रॉपर रेस्ट नहीं की। तो इन द सेम मैनर, जब हम डे टू डे एक्टिविटी में इतने बिजी रहते हैं, डेली जो शेड्यूल है हमारा, तो हमें इस फ्री टाइम में क्या करना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी भी कर सकें, रिलैक्स भी रह सकें, हमारा माइंड भी एक्टिव हो। तो दिस इज पॉसिबल ओनली बाई डूइंग दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, और स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल किड्स। तो स्मॉल किड्स के लिए बेटा सबसे बेस्ट है, यू इंगेज योर सेल्फ इन बाई प्लेइंग गेम्स, सबसे बेस्ट है। इज इट क्लियर? यू इन्वॉल्व और you engage yourself while playing the different games। और आप फ्रेश ग्राउंड में, अगर आप ग्राउंड में आउटडोर गेम खेलने जाते हो,
तो सोचो उसका भी फायदा है, यू आर गेटिंग फ्रेश एयर। जैसे बहुत लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सुबह जॉगिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रेश एयर हमें चाहिए। इज इट क्लियर? हो सकता है आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो ऐसे लोग पार्क्स में जाना पसंद करते हैं। इज इट क्लियर? और जब आप ऐसे ओपन ग्राउंड्स में प्ले करते हो तो आपको क्लीन एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए, एंड दैट इज आल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।